Hello student, my name is Hemant Rana and I welcome you all on my channel Educational Buddha. This is the part 7th of chapter number 4th, Tick 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 of class 4th Math Magic, and today we will discuss page number 49, 50 and 51. So let us start our video. Tutun missed the train. This topic is given on page number 49 of our textbook. Tutun's school had closed for the summer holidays. He went to his grandma's place. He met a lot of his cousins there. He was enjoying himself and didn't want to go back home. His grandma says, Tutun, pack your bag. The train leaves at 5:30 in the evening. And Tutun thought, oh no, we are going back so soon. I wish we miss our train. उसकी ग्रैंडमा कहती हैं चलो बेटा जल्दी से बैग पैक कर लो, हमारी ट्रेन है वो 5:30 इवनिंग को स्टेशन छोड़ देगी, मतलब कि 5:30 को स्टेशन पे आने वाली है. तो तुतुन बोल रहा है कि काश हमारी ट्रेन मिस हो जाए, क्योंकि उसको अपनी ग्रैंड माँ के घर पे रहने को मजा आ रहा है. So Tutun and his parents reached the station at 5:15. But guess what? They had actually missed the train. Actually, his grandma said the train leaves at 5:30 in the evening. उसकी ग्रैंडमा ने कहा था कि जो ट्रेन है वो 5:30 को स्टेशन छोड़ देगी, और वो सारे के सारे जो लोग थे उनके पेरेंट्स और तुतुन वो 5:15 को ही स्टेशन पे पहुंच गए हैं. बट गेस व्हाट, दे हैड एक्चुअली मिस्ड द ट्रेन. वो एक्चुअली ट्रेन को मिस कर गए. कैन यू गेस व्हाई दे मिस्ड द ट्रेन? उन्होंने ट्रेन को क्यों मिस कर दिया? आपको क्या लगता है? यस, our railway uses 24-hour clock time and their ticket shows 5:30, means the train was in the morning and they reached at station in the 5:15 of evening, so they missed the train. Our railway uses 24-hour clock time. हमारा जो रेलवे है उसकी जो क्लॉक टाइम है वो 24-hour क्लॉक को फॉलो करता है. एंड द टिकट शोज 5:30. 5:30 मीन्स ट्रेन वॉज इन द मॉर्निंग एंड दे रीच्ड ए स्टेशन इन द 5:15 ऑफ इवनिंग, सो दे मिस्ड द ट्रेन. उनकी ट्रेन सुबह की थी 5:30 और वो शाम को पहुंचे हैं 5:15 को, इसीलिए उन्होंने अपनी ट्रेन मिस कर दी. सो नाउ क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड. हियर रिटर्न 24-hour क्लॉक. हम अपनी क्लॉक फेस पे देखते हैं तो नंबर वहां पर जो लिखे होते हैं दैट इज 1 to 12, 1 से लेके 12 तक ही होते हैं. एंड हियर यू कैन सी 24-hour क्लॉक. तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि व्हाट द मीनिंग ऑफ 24-hour क्लॉक. ये 24-hour क्लॉक क्या होती है? लेट अस डिस्कस अबाउट 12-hour क्लॉक एंड 24-hour क्लॉक. तो चलो देखते हैं कि 12-hour क्लॉक क्या होता है एंड 24-hour क्लॉक क्या होता है. Here you can see the time for 20-hour clock and above you can see the time of 12-hour clock and this is a timeline. यहाँ पर जो मैंने रेड कलर में टाइमलाइन शो की है, इसके ऊपर जो भी टाइम दिखाई देगा वो आपको 24-hour क्लॉक का टाइम होगा, और रेड लाइन के नीचे जो भी टाइम मैं यहाँ पे शो करूंगा वो 12-hour क्लॉक के अकॉर्डिंग टाइम होगा.
As we know, a day starts at midnight, 12 midnight, and ends with नेक्स्ट डे मिडनाइट. रात को 12 बजे हमारा दिन शुरू होता है और नेक्स्ट रात को 12 बजे दिन एंड होता है. एंड मिडल मीन्स मिड डे. मिड डे इज कॉल्ड 12 नून, जिस टाइम पे सन हमारे सिर के ऊपर होता है. You can see here midnight to noon. This is called anti-meridium. Short form of anti-meridium is AM. Anti-meridium is a French word और उसका short form होता है AM. That means before midday. Before midday, midnight to midday. जो भी टाइम होता है वो AM में लिखा जाता है. एंड midday to midnight, that is called post meridium. Post meridium short form is PM. That means after midday. Midday to midnight उसको लिखा जाता है PM में. तो 12 midnight to 12 noon, यहां पे हम AM में टाइम लिखते हैं. 12 midnight, next 1 AM, 2 AM, 3 AM, 4 AM, 5 AM, 6 AM, 6 that means in the morning, 7 AM, 8 AM, 9 AM, 10 AM, 12 AM and 12 noon is already written. यहाँ पे 12 जो नून है उसको ना तो हम AM में लिखेंगे ना हम PM में लिखेंगे, उसे 12 नून लिखा जाएगा. ठीक है. तो midnight to midday time should be written in AM and midday to midnight time must be written in PM. 12 के बाद फिर से हमारा 1 to 12 शुरू होगा. So 12 after 12 midday it is 1 PM. Next 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM, 7 PM, 8 PM, 9 PM, 10 PM, 11 PM and 12 midnight. तो ये जो टाइम मैंने शो किया है वो है हमारा 12 o'clock का टाइम. अब उसके ऊपर मैं टाइम शो करूंगा 12 o'clock का टाइम. सो 12 midnight, that means 0 hour, 1 hour, 2 hour, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 noon, that means 12 hour. ये 12 midnight to midday तो टाइम हमें इजीली याद हो जाएगा कि इसमें कुछ ज्यादा हमें करना नहीं है. 12 को 0, 1, 2, 3 को 3, 4 को 4, वैसे ही सो ऑन 12 को 12 तक ले आना. लेकिन उसके बाद वाला जो टाइम है, जो PM वाला टाइम है, उसको हम 12 के बाद काउंट करेंगे. 13, 14, 15 like that. So 1 PM that means 13 hour, 2 PM that means 14 hour, 3 PM that means 15 hour and so on. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 and 24 hour. 12 midnight को हम 00 hour भी लिख सकते हैं and 24 hour भी लिख सकते हैं. Both are right answer. Next, look at this chart. It tells the difference between your watch and a 24-hour clock. Try to complete it. Here you can see the chart. In the first column, time written in 24-hour clock format, and in the second column we have to write the time in 24-hour clock format. यहाँ पे 12-hour clock फॉर्मेट में टाइम दिया गया है. यहाँ पे AM और PM नहीं लिखा है, लेकिन हम
देख सकते हैं कि आफ्टरनून 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 आफ्टरनून, इवनिंग एंड इवनिंग, तो ये सारा का सारा पीएम में आएगा, बिकॉज ये है हमारा पोस्ट मिड डे के बाद वाला टाइम है। और मिडनाइट जैसे अभी हमने देखा, उसके दो आंसर होते हैं, देखते हैं हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसके आंसर भी हमें पता चल जाएगा। इससे पहले हम कुछ यहाँ पे देखते हैं कि अगर टाइम एएम में दिया गया है तो हम कैसे आंसर फाइंड आउट करेंगे 12 आवर क्लॉक का। बिफोर मिड डे अगर एएम में टाइम दिया गया है तो जो भी हमें टाइम दिया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें जीरो ऐड करना है, तो हमें 24 आवर क्लॉक का टाइम मिल जाएगा। For example, the question is given 9 a.m. and we have to change 9 a.m. into 24 hour clock. 9 a.m. को हमें कन्वर्ट करना है 24 आवर क्लॉक में, तो यहाँ am में टाइम लिखा है, दैट मीन्स 9 am प्लस 0 इज इक्वल टू 9 आवर्स। यहाँ 9 में सिर्फ हमें 0 ही ऐड करना है। अगर हमें टाइम am में दिया है तो मान लो कि हमारा टाइम है वो आफ्टर मिड डे है, दैट मीन्स पीएम में है, तो उसमें हम ऐड करेंगे 12। फॉर एग्जाम्पल टाइम इज गिवन 3 p.m. and we have to convert this time into 24 hour clock. So 3 p.m. equals 3 plus 12 and 3 plus 12 is equal to 15 hour. ऑलरेडी हमारा टाइम यहाँ पे 3 o'clock इन द आफ्टरनून, दैट मीन्स 3 p.m. एंड 3 p.m. को अगर हम 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करेंगे तो वी गॉट द आंसर 15 आवर्स। सेम मेथड 6 o'clock in the evening, again evening that means 6 p.m. and 6 p.m. that means 6 plus 12, 6 plus 12 is equal to 18 hours. Again evening that means 9 p.m. and 9 plus 12 that means 21 hours. Now come to the last questions, 12 o'clock at midnight. मिडनाइट के हमने दो आंसर देखे थे यहाँ पे, ये है हमारी टाइमलाइन, स्टार्टिंग ऑफ द डे, मिड डे एंड एंड ऑफ द डे। तो स्टार्ट हो रहा है उसको हमने 00 आवर मेंशन किया था, एंड वी हैव मेंशनड एंड ऑफ द डे दैट मींस 12 मिडनाइट 24 आवर इन द 24 आवर क्लॉक टाइम। इसको हमने 24 आवर क्लॉक में 24 आवर्स लिखा था और स्टार्टिंग को हमने 00 आवर्स लिखा था, तो इसका आंसर हमें ये दोनों मिल रहे हैं। तो दोनों आंसर यहाँ पे सही है, दोनों क्वेश्चन दोनों आंसर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 00 आवर्स एंड 24 आवर्स, बोथ आर द राइट आंसर। Next question, now can you tell why a 24 hour clock is called so? अब 24 आवर क्लॉक को 24 आवर क्लॉक क्यों कहा जाता है? So answer is, we know that there are 24 hours in a day. The 24 hour clock shows the time for the entire day. Therefore, this is called as 24 hour clock. हमें पता है कि हमारा जो पूरा दिन है वो 24 घंटे का होता है, एंड 24 आवर क्लॉक है वो पूरे दिन का टाइम शो करता है, इसीलिए इसको हम 24 आवर क्लॉक कहते हैं। Suppose a train leaves at 8:30 at night. The time written on the railway ticket would be dash. अगर ट्रेन है वो स्टेशन पे 8:30 नाइट को आती है तो रेलवे की टिकट पे टाइम क्या लिखा हुआ मिलेगा? The train leaves at 8:30 at night, so the time would be 8:30 p.m. ये पीएम होगा, एंड हमने यहाँ पे जस्ट अभी देखा है आफ्टर मिड डे का अगर टाइम दिया है, पीएम में टाइम दिया है, तो वी हैव टू ऐड 12 टू कन्वर्ट पीएम टाइम इनटू 24 आवर क्लॉक। अगर पीएम में टाइम दिया है तो अगर हम उसमें 12 को ऐड करेंगे तो हमें 24 आवर क्लॉक का टाइम मिल जाएगा। Therefore, time written on the railway ticket equals 8:30 plus 12, and 8:30 plus 12 is equal to
20-30 hours. So our answer is the time written on the railway ticket would be 20-30 hours. Our answer is 20-30 hours. You must have noted the time of sunrise and sunset right here using AM and PM. हमने सनराइज एंड सनसेट का टाइम ऑलरेडी नोट किया हुआ है. दैट इज गिवन ऑन द पेज नंबर 37. पेज नंबर 37 पे हमने ऑलरेडी सनराइज एंड सनसेट का टाइम नोट किया है और अब हमें उसे AM एंड PM को यूज करते हुए लिखना है कि कौन सा टाइम AM में आएगा और कौन सा टाइम है वो PM में आएगा. Okay, this is the time of sunrise and this is the time of sunset. So what is the time of sunrise? 6 o'clock in the morning and the time of sunset is 7:30 in the इवनिंग. तो ये मॉर्निंग का टाइम है, दैट मीन्स आफ्टर मिड डे. ये टाइम लिखा जाएगा AM में एंड इवनिंग का टाइम है, दैट मीन्स पोस्ट मिड डे. तो ये टाइम लिखा जाएगा PM में. तो 6 o'clock in the morning is written like this 6 AM and 7:30 in the evening means 7:30 PM. The time of sunrise is 6 AM and time of sunset is 7:30 PM. Last question. Where have you seen a 24 o'clock being used? आपने कौन कौन सी जगह पे देखा है 24 o'clock का यूज होते हुए? So 24 o'clock is used at so many places. बहुत सारी जगहों पे यूज की जाती है. यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे लाइक एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मिलिट्री कैंप, इन मोबाइल्स, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा. इन सारी जगहों पे 24 o'clock का यूज किया जाता है. Okay, and so this is the end of chapter 4. टिक टिक टिक. यहां पर हमारा चैप्टर नंबर जो 4th है टिक 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 वो फिनिश होता है, एंड हो रहा है. So thank you for watching my video, students, and if you like my video then subscribe my channel, like the video and also do comment. Thank you once again. Thank you for watching my